So in this particular part we are studying about isomerism. Okay, which are the different kinds of isomerism, Buran? Which are the different kinds of isomerism? Structural isomerism and stereoisomerism. In structural we are having ionization, solvate, linkage and coordinate isomerism, and in stereo we are having geometrical and optical. Let us see the first point in detail, that is ionization isomerism. ठीक है? हाँ हाँ तो उठा ना फिर. Okay, so ionization isomerism. In ionization isomerism, compounds, पक्का मॉम का ही है ना, क्योंकि मॉम को इतनी इंपॉर्टेंस देने वाली लड़की नहीं तो. हाँ, so compound which give different ions in solution even they have same composition are called as ionization isomerism. So pay attention. इसमें क्या डिफरेंट है? टू स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस आर कॉल्ड एज व्हाट? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. अब देखना यहाँ पे आयन कौन है? सल्फेट आयन है. और यहाँ पर आयन कौन है? ब्रोमाइड आयन है. तो अगर मैं इसको BaCl2 के साथ रिएक्ट करूं तो BaSO4 मिलेगा, क्योंकि सल्फेट इज इन द आयनिक फॉर्म, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. वही BaCl2 अगर इधर ऐड करूंगा तो कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलने वाला है. सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स. सो व्हाट इज डिफरेंट? Two structures having the same molecular formula but the ions are different. Okay, what are different? Ions are different. Okay, got this? They are called as ionization isomers. फिर से बता रहा हूं, सिया. Two structures, can you see these two structures? Yes, in these two structures one of them is having sulfate as the counter ion, and in the other case the other one is having bromide. इसके लिए bromide ligand था और इसके लिए sulfate ligand बन गया है. Are you getting this, Gayatri? That's the reason why they are called as ionization isomers. What are they called as? Ionization isomers. Two structures having the same molecular formula but they having different ions are called as ionization isomers. So ligand has got converted into ion. इतना ही फर्क है. Have you written this down? Yeah, should I move on to the next slide? Zaman, show me what you have written. Show me what you have written. Get that here. Get that here. Come here, come here. After looking at it, maybe I would feel like एग्जाम्पल कौन लिखेगा? Yeah, done. Roshan, you can book the tickets later. Please write down the example. Yeah, बुक हो चुकी है, वही प्रॉब्लम है. शंतनु को लेके जा. कॉलेज जा रहा है. शंतनु यहाँ पे बैठना. जोएल अंदर से शिफ्ट होना जरा. प्रिया शिफ्ट इन इनसाइड. बैठ 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 उधर जोएल के बाजू में बैठ. शिफ्ट इनसाइड. और थोड़ा और है क्या जगह? हाँ, इनफ. डन. नहीं दिख रहा है? तू पहले सब बातें करके ले और फिर लिखना शुरू कर, तू बेशरम. So here with BaCl2 you will get a pale yellow PPT. मतलब BaCl2 अगर ऐड करेंगे, no not BaCl2 sorry, यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? AgCl ऐड कर रहे हैं, तो you'll get AgBr with the yellow PPT. और यहाँ पे BaCl2 ऐड कर रहे हैं तो you'll get a white PPT of BaSO4, right? So next,
अनदर एग्जाम्पल देखो, और एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. व्हाई इट इज एन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? सिया, बिकॉज दिस ब्रोमीन is acting as a counter ion and that same bromine becomes a ligand over here. This chlorine is acting as a ligand over here. Here it has become the counter ion. कुछ समझ में आ रहा है? वाइस वर्सा, ऐसा वैसा किया है, मतलब जो काउंटर आयन था उसको लिगैंड बना दिया था, जो लिगैंड था उसको काउंटर आयन बना दिया. गॉट इट? डन? यस. नाउ वी आर हैविंग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो. ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो रहता है उसको हम लोग हाइड्रेट कहते हैं या सॉल्वेट कहते हैं. तो हाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेट के मॉलिक्यूल्स अगर अलग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. आप देख रहे हो यहां पर कि इसमें H2O 6 टाइम्स, ये लिगैंड है. H2O हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. दिखाई दे रहा है? H2O 6 टाइम्स, दैट इज लिगैंड. और एक H2O को मैंने हाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है, बट यहां पे एक मॉलिक्यूल हाइड्रेट में है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में है, and therefore it is having the same molecular formula but different number of water of crystallization. Such a isomerism is called as solvate isomerism or hydrate isomerism. Okay, solvate isomerism or hydrate isomerism. What is the difference? Difference is in the number of water molecules, and you can see that the water molecules change the color also. They change the color. Whose color? The color of the compound. You can see the color of the compound has changed over here. Who's that? Zaman, I am coming there. You will get to know why. So, in case of no water crystallization, the color is violet. Yeah, same thing we had also seen in something called as copper sulfate. Copper sulfate का एक बार आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, याद है? What would happen if, वो वीडियो किया था ना यहाँ पे, what सिलेंडर रख के हीटिंग किया था कुछ सॉल्ट्स का, याद है क्या? तो उसमें से एक सॉल्ट क्या था? कॉपर सल्फेट भी था. तो कॉपर सल्फेट में जब तक .5H2O है, जब तक उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, तब तक क्या करेगा? वो ब्लू कलर का रहेगा. और जैसे ही हम लोग उसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद में हीट करने के बाद में क्या होगा? इट विल बिकम एनहाइड्रस, दैट इज कंप्लीटली विदाउट वाटर, and when it becomes anhydrous completely without water, it will turn white. Okay, so the color changed from blue to white. Okay, color has changed from blue to white. Zaman, वो काफी नहीं था शायद. Okay, copper sulfate from blue to white. क्यों? क्योंकि it got changed, the water of crystallization got changed. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है जो कलर सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में दिखाते हैं, जैसे कि ग्रीन विट्रियॉल. वो भी कलर, ग्रीन विट्रियॉल मतलब FeSO4, कलर तभी दिखाएगा जब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. तो इधर भी ऐसा ही है ना, इट इज हैविंग द डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड देयरफॉर द कलर इज चेंजिंग. व्हाई डू कंपाउंड्स चेंज कलर? उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, आपको सेंड भी किया है, शायद आपने देखा नहीं होगा. अगर नहीं देखा है तो देख लो, मैं आपको पिन करता हूँ वो वीडियो कहाँ पर है, देखो वो वीडियो. ओके, सो दिस इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. दिस इज इन विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. अब नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म. ओके, लिंकेज आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? लिंकेज मतलब लिंक कहां से हुआ है. ठीक है, कुछ ऐसे लिगैंड्स हैं हमारे पास जो दो तरफ से लिंक हो सकते हैं, उसको हम लोग एम्बिडेंट लिगैंड्स कहते हैं. ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर एम्बिडेंट लिगैंड्स. तो यहां पर
you can see that it is connected from the oxygen side. मतलब NO2 है, ये कौन है? NO2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की साइड से कनेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग आइसोनाइट्रो कहेंगे इस केस में, और यहाँ पे N की तरफ से कनेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग नाइट्रो कहेंगे। दिस इज येलो इन कलर, दिस इज रेड इन कलर, येलो एंड रेड। गॉट इट? तो किसमें फर्क है? लिंकेज में फर्क है। ऐसा ही लिंकेज आइसोमर साइनाइड के साथ में भी हो सकता है। साइनाइड मतलब कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, और आइसोसाइनाइड यानी कि आइसोसाइनो विल बी फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड। ऐसा ही सेम लिंकेज आइसोमर हमको सल्फेट और नॉट सल्फेट, थायोसायोनाटो और सायनाटो इसमें हो सकता है। मतलब SCN में, थायोसायोनाटो में SCN सल्फर की तरफ से भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैच हो सकता है। सो ऑल एम्बिडेंट लिगैंड्स आर एबल टू शो अस व्हाट? लिंकेज आइसोमर्स। What are they able to show us? They are able to show us linkage isomers. So you can see that the color also changes because of the linkage, like a change in linkage. ठीक है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे येलो है। डन? In every linkage isomer there will be a color change. No, not necessary, but generally there is a color change when there is a linkage isomer formed. गायत्री ठंडी लग रही है क्या? पक्का ना? थोड़ी देर में, 2 मिनट में कर दे। ओके, डन ऑल ऑफ यू ऑल? यस पार्थ, हो गया ना? हाँ हाँ, पूरा मेंटली उसने रिकॉर्ड कर लिया पूरी चीज। शुड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? सो हियर वी आर हैविंग कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। अभी देखो अब तक कौन से आइसोमर्स किए हम लोग ने? विच ऑल आइसोमर्स हैव वी डन? यस, विच 3? आयोनाइजेशन, हाइड्रेट और लिंकेज। आयोनाइजेशन में क्या डिफरेंस था? लिगैंड कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन बन जाता है और काउंटर आयन लिगैंड बन जाता है। दैट वी हैव सीन इन आयोनाइजेशन आइसोमर। फिर सॉल्वेट में क्या देखा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो लिगैंड था वो लिगैंड जो वाटर में था वो बाहर आ रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बन रहा है, राइट? एंड अगेन एंड अगेन वी गेट एवरी चेंज इन वाटर मॉलिक्यूल वी गेट अ डिफरेंट कलर एंड अ डिफरेंट आइसोमर। दैट वाज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। आफ्टर सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अभी हम लोग ने देखा कौन सा? लिंकेज। लिंकेज में क्या था? इधर यू अटैच इट फ्रॉम द साइनाइड कार्बन साइड और नाइट्रोजन साइड फॉर एम्बिडेंट। दिस इज ओनली फॉर एम्बिडेंट लिगैंड्स। इन केस ऑफ नाइट्रो इधर फ्रॉम द ऑक्सीजन साइड और फ्रॉम द नाइट्रोजन साइड। वैसे ही अभी नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? देखो ये मैं आपको बोल रहा था थोड़ी देर पहले अबाउट डबल स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स। तो ये वो कंपाउंड्स है, इसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अब इसमें क्या करो कि उसका सेंट्रल मेटल एटम या पूरा का पूरा राउंड ब्रैकेट ही चेंज कर दो। मतलब यहां पे देखो कॉपर इज विद NH3 एंड PT इज विद Cl। एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज करने के बाद में PT has come with NH3 and copper has come with Cl. So this is becoming coordination isomerism and it is possible only in compounds which are having double square bracket. Okay, it is possible only in the compounds which are having a double square bracket. We haven't seen, hello,
We haven't seen how to name these. Please write down the names from your very textbook. आपकी टेक्स्ट बुक में से इनके नाम प्लीज लिख लेना, क्योंकि आपको कटायन और अनायनिक कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे से आ गया है अभी नेमिंग करना, ठीक है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, ठीक है। रोशन भी फटाफट विदाउट विदाउट सॉल्विंग इन द बुक आंसर कर रहा था, बुरान भी कर रहा था, गलत भी हो रहा था, मुंह पे भी गिर रहा था, बट वो कर रहा था। ओके, हाँ यस रोशन, हाँ होगा ना, चेंज होगा इसमें, चार्ज हो सकता है चेंज। अगर सेंटर मेटल एटम की वैलेंसी सेम नहीं है तो चार्ज चेंज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज चेंज होगा। ओके, बट यहाँ पे कॉपर और प्लैटिनम दोनों की वैलेंसी 2 और 2 है, +2 +2। हाँ, अरे वही तो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म है, नहीं तो फिर दोनों आइडेंटिकल नहीं हो जाएंगे क्या? लिगैंड सी, मैं क्या बोल रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल तू और हैदर है जो आज मूवी के लिए नहीं आ रहा तेरे साथ, ठीक है, डॉल्मा यू कैन क्लोज द डोर विंडो, ठीक है। तो व्हाट डिड वी से, वी सेड दैट हैदर और रोशन दे आर वेयरिंग 2 कैप्स, दे इंटरचेंज द कैप्स, बराबर। अब रेड कलर की कैप रोशन ने पहना, व्हाइट कलर की कैप हैदर ने पहना, दोनों ने कैप्स इंटरचेंज कर लिए। अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि कैप ने बंदों को इंटरचेंज कर लिया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Earlier red cap was going along with Roshan and white cap was going along with Haider. Now red cap is going with Haider and white cap is going with Roshan. मतलब अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम चेंज कर रहा हूं तो ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि यार मैं लिगैंड चेंज कर रहा हूं, सेम थिंग नो। मतलब ये इधर नहीं चलेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कटायन है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड कटायन है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट है या कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स। तो वो सीक्वेंस चेंज मत करो, सिर्फ एक तो बोल सकते कि सेंट्रल मेटल एटम को एक्सचेंज कर दिया या फिर लिगैंड को एक्सचेंज कर दिया, इज द सेम थिंग। समझ में आया एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, टोपी को पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे देखना ये वाला एग्जांपल में कोबाल्ट एंड क्रोमियम हैव एक्सचेंज द पोजीशंस, क्रोमियम इज नाउ गोइंग विथ इथिलीन डायमाइन एंड कोबाल्ट इज नाउ गोइंग विथ साइनाइड। आई होप यू ऑल हैव रिटन अंडरस्टैंडिंग द एग्जांपल्स। हाँ, कलर चेंज इसमें तो नहीं दिखाया है। यस जोएल, हाँ सेंट्रल मेटल एटम चेंज किया है, ठीक है, बट इसमें दोनों कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब दोनों काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट वाले होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी स्क्वायर ब्रैकेट वाला और काउंटर आयन भी स्क्वायर ब्रैकेट वाला। डन, जाओ आगे। देख जमान, देख देख जल्दी बोलना कुछ। अरे वो ऑप्शन नहीं है यार, नेक्स्ट लेवल का बंदा है ये सच में, ये ऑप्शंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म? फर्स्ट वन, ये इसमें ये दोनों में ऑप्शंस है, ये वाला। Yeah, this and this can show coordinate isomerism because they are having double square bracket compounds, right? दोनों आंसर करेक्ट है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट वाले compounds. Getting this? Then there should be an option. देखा जमान क्या हो रहा है? Which of the following gives white precipitate with AgNO3? Which one will give white precipitate with AgNO3? AgCl कहाँ पे फॉर्म होगा? इधर ही फॉर्म होगा ना, क्योंकि इधर chloride is the counter ion. तो Ag will combine with this and form what? This is dissociable ना, and therefore it can combine, Ag can combine with this form to form AgCl and obviously give you white precipitate. ठीक है, नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल। अभी देखो स्ट्रक्चरल सारे खत्म हो गए, स्ट्रक्चरल रिलेटिवली इजी थे, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चरल इजी थे क्या बुरान?
क्या इसमें फटी स्ट्रक्चरल में? नहीं, मैं बोल रहा था कि स्ट्रक्चरल इजी थे क्या वाकई में? कौन से थे बोल, स्ट्रक्चरल 4 टाइप बोलो। हाइड्रेट। तो डॉल्मा हाइड्रेट में क्या हो रहा था? हम्म, हाँ बोलो ना, करेक्ट है। हम्म, यस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे, दे हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ओके, या सो अब जमान बताओ, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है? ठीक से बताओ, ठीक से। रुक रुक, एलपी तेरा चांस आएगा। हाँ, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पूछा मैंने तुमको, ठीक से बोलो। टू स्ट्रक्चर्स हैविंग द सेम different ions, give me an example. तो है ही नहीं इस दुनिया की, एक ही गाना आ जाता है। हाँ बोल, टॉर्किस बोलो, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। Which ions? Counter ions बोलो ना। They are having different counter ions. Ligand becomes a counter ion becomes the ligand. Okay. फिर Joel, tell what is linkage isomers in coordination compounds. ऐसे कैसे? Yes, it can be formed only with ambident ligands, wherein one of the ambident ligand attaches from, if nitro is the example, it will attach from oxygen side or nitrogen side, and if cyanide is the example, one will attach from the carbon side and the other one will attach from the nitrogen side. ठीक है? क्यों? किधर है ध्यान तेरा? तो Na2 का ही बोलना था।